Hi, I am Komal and I am going to introduce you to the fabric which is more than 3000 years old from our Indus Valley civilization. It is the reza. Reza is the first cotton fabric which was formed in Indus Valley civilization. It is a purely organic product of Indian soil. It took 11 years to make this fabric for the first time in Indus Valley civilization. We youth hardly know what is Reza fabric and how it is made. Reza fabric is made from the cotton. To make Reza fabric, the cottons are spun into the wheel or the charkha to make the threads out of the cotton. Then the threads are woven to make a fabric. And this fabric has 0% shrinkage. While making Reza fabric, the cotton threads are soaked in water for 24 hours, which makes them very powerful and its strength becomes double. And again it is spun and woven. This is why it has 0% shrinkage and it has many benefits. Reza is a healing fabric as it is very organic, it is natural. You must know it has a feature that if a person wears in summer season, this fabric will keep the body temperature of a person cool. And when this Reza fabric is worn in winters, it will keep the person's body temperature warm. Like it's a magic. Because of its moisture content, Reza fabric is easy to wear in every season and it is so comfortable. Once a person starts wearing Reza fabric, he or she addicted to it. Like he wants to have only Reza fabric and nothing else. Reza fabric is antibacterial fabric. It is skin friendly. It saves us from ultraviolet rays. It has many useful benefits and it is very helpful for our body. When you wash this fabric, you will say, what is this? It has become something else. When it is dry, it gains its original shape. It does not need any ironing or any types of maintenance. It is rough and tough. You can wear it anywhere, anytime and anyway. It's just we youth don't have much idea about Reza fabric. We should be proud to be Indian, that India has this unique fabric. If a person says Reza is better or Khadi, definitely Reza. Why? Let me tell you. Both are made from cotton, but Reza doesn't go with processing. But Khadi has to undergo with certain processing. And some of the reason is like some person can't wear Khadi at certain places. But Reza is the fabric which transforms itself with your body type. It deals with your body temperature. The most important person to bring this Reza fabric between us is Lalita Chaudhary from Rohtak. She is the lady who has brought this 300 years old fabric between us. That is the Reza. And you will be surprised knowing that Reza fabric is woven by the prisoners in Rohtak jail. Lalita ji says, when you are spinning the wheel, you should have full concentration. If the concentration breaks, the thread will also break. So, this helps a person in meditating. While spinning the wheel, the prisoners also get satisfaction. They also feel relaxed and they are meditating and they are earning their living as well. The prints done on Reza fabric is also done with organic colors and it is not dried in sun.
Like when it is washed, it should be dry, not to be in the sun, but somewhere indoor. Reza fabric is very sustainable. And Lalita ji says the fabrics which are dyed under her guidance does not lose colors while washing. The colors are very vibrant when it is dyed on the fabric. Self-help group is the group of females who does the block printing on Reza fabric and makes home furnishing out of it. Lalita ji is making wonderful clothes out of this Reza fabric, and she is showcasing her designs all over India and world. She is creating wonderful fabrics and garments out of Reza. World is mad about Reza. Reza is full of qualities and qualities. We youth should try and adapt Reza for our healthy living and for our better well-being. कैसे यूथ इस कपड़े की तरफ एक होता है ना कि वो एकदम वो उसकी ऐसी क्या खूबी है या ऐसे कि जो यूथ इसकी तरफ अट्रैक्ट हो कि नहीं हमें यही पहनना है। देखो, यूथ सिर्फ फैशन को देख के ही पहन सकता है कि उसमें क्या फ़ैशन कट्स हैं, क्या फ़ैशन पैटर्न्स हैं। कि बहुत कम लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और सिर्फ हेल्थ की वजह से फैब्रिक को पहने। तो यूथ के लिए मेन यही है कि इसको प्रॉपर तरीके से फैशनेबल बना के और प्रॉपर मार्केटिंग करके दिया जाए, यूथ तभी अट्रैक्ट होगा उस चीज़ को लेके। और इनफैक्ट आप लोगों ने तो स्टडी में किया ही होगा, आप मेसोपोटामिया में तो पढ़ते ही हो। अगर चलो आपने इंडस वैली नहीं पढ़ा तो मेसोपोटामिया तो पढ़ते ही हो। मेसोपोटामिया से सिल्क आता था, वो सिल्क हमारा इंडिया आता था और इंडिया से हमारा कॉटन उधर जाता था, तो और वो भी ब्लेड करके बनता था, जबकि सिल्क हमारा असम में सबसे पहले होता था। पर मेसोपोटामिया सिल्क इधर से जो ये पूरा एक इनका सिल्क रूट जो तैयार हुआ है, या हम लोग जितना बिज़नेस क्रिएट कर रहे थे उस टाइम पे, तो उनके पैटर्न्स भी हमारे पैटर्न के साथ मैच कर रहे थे। हमारी कॉटन वहाँ जाती थी और वो तभी जाती थी कि उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते थे हमारे कपड़ों में, वरना तो ऐसे ही कोई बिज़नेस नहीं करेगा। और जैसे जो आपने ये फैब्रिक, जैसे जो आपने ये पहना है ड्रेस, ये तो रेज़ा फैब्रिक का बना हुआ है, तो मैं पूछना चाहिए जैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि कहीं कहीं पे तो ये क्या एक्चुअली ब्लॉक प्रिंट है कि क्या है, डाई है? नहीं, ये ब्लॉक प्रिंटिंग है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, हमने लाइट डार्क करके किया हुआ है। हाँ, ये हैंड, और ये भी नेचुरल वेजिटेबल कलर्स होते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। कई दफ़ा होता है इमरजेंसी होती है तो केमिकल भी यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें केमिकल नहीं आएंगे, पर अगर हम केमिकल कलर यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो फैब्रिक का बनाने का मेथड है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से हम बना रहे हैं। और कितना टाइम लगता है, जैसे आपको, जैसे ये होते हैं ना, ये ड्रेस अगर 1 मीटर क्लॉथ है उसको वीव कराने में कितना टाइम लगता है? इसमें डिपेंड करता है आप कितने GSM पे बना रहे हो। मिनिमम 20 काउंट पे काम कर रहे हैं तो 20 काउंट एक दिन में एक बंदा 6 मीटर फैब्रिक बना पाएगा। 20 काउंट। अगर हम बात करते हैं 6 काउंट किया जाते हैं तो 6 काउंट फैब्रिक 20 मीटर तक बन जाता है। अब मैंने जो पहना हुआ है ये ऑलमोस्ट 10 काउंट है, तो 10 काउंट आपका एक दिन में 15 मीटर कपड़ा एक बंदा बना सकता है। ये इस तरीके से। एंड तो जो जेल में ये वीव होते हैं, तो जो कैदी लोग हैं उन लोग को भी तो फिर अभी तो अच्छा वो हो रहा है ना कि अच्छा सोर्स ऑफ इनकम उन लोग के लिए हो रहा है। हाँ, वो लोग काम कर, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए या ये एनिमेट्स हो गए या कोई और भी जितना जुड़ा है बंदा, गांव से भी बहुत सारे फीमेल हैं जो चरखे पे काटते हैं, क्योंकि इसमें मैनुअल स्पिनिंग होता है, तो वो लोग फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग होते ही हैं। भले ही वो 3000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक का पर मंथ अर्निंग करते हैं, पर बिल्कुल खाली बैठ के आप इतना अर्न कर रहे हो वो भी काफ़ी है। खादी में प्रोसेस होता है, जब पहले खादी में धागा बना, आजकल तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि खादी में आपका अंबर चरखा यूज़ हो रहा है। अंबर चरखा करो या आप पावर लूम में धागा लो, बात तो एक ही है, कोई खास फ़र्क तो आएगा ही नहीं उसमें, ठीक है। तो आजकल देखा जाए तो बिल्कुल ही अलग है, पर अगर बात करें ऑथेंटिक खादी की, वहाँ पे भी ये अलग कैसे है कि स्पिनिंग, हैंड स्पिनिंग हुआ। अब जब लूम पे कपड़ा जाएगा, खादी में क्या है, लूम पे कपड़ा डालने से पहले वो स्टार्च लगा देते हैं, या तो कई लोग बोलते हैं आटे की लई लगा दिया, कई मदार का दूध लगा दिया, कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं स्ट्रेंथ के लिए। लेकिन इसको स्ट्रेंथ देने के लिए आपका स्पिनिंग, उसके बाद ये वाटर डिप होता है 24 आवर्स, और उसके बाद दोबारा स्पिनिंग होता है इसका थ्रेड तैयार करने के लिए, वो स्ट्रेंथ देने के लिए, और फिर वो लूम पे जाता है। और इसके फिर अब खादी को वॉश करो, वीव होने के बाद 3 से 4 इंच लॉन्ग लेंथ और विड्थ दोनों साइड से श्रिंक होगा,
इसमें 0% श्रिंकेज है क्योंकि ये वाटर डिप हो चुका है। तो ये, और दूसरा ये समर और विंटर दोनों में आप कैरी करोगे, खादी आप नहीं कैरी कर सकते, खादी आप सिर्फ समर में पहन पाओगे। तो और दूसरा, खादी में ब्राइट कलर नहीं आते हैं, इसमें ब्राइट कलर आते हैं। अगेन वही प्रोसेस कि जो खादी को बनाने में प्रोसेस हो गया है, यहाँ से ये कपड़ा अलग हो जाता है। बाकी अगर बेसिक देखें तो कॉटन, वो भी कॉटन यूज़ कर रहे हैं, रेज़ा में भी कॉटन यूज़ हो रहा है, तो ये चीज़ का मेन डिफरेंस है।